All of us have seen family disputes. All of us have seen cases where daughters are still fighting for their rights in the property, even after their rights have long been recognized by acts, legislations such as the Hindu Succession Act. But have you ever heard of or seen a dispute, a family dispute over property, which began in the year 1991 and which lasted until the year 2022, January 2022? It was put to rest by none other than the Indian Supreme Court in January 2022 by recognizing something that can be considered as a landmark law laid down by the Indian Supreme Court. In this video, you will get to know about one such case. Hi guys, this is Isha Kapoor and you're watching Vlogish. To start with, I have reproduced here on your screen the family tree of the family which was involved in this case. This was the case of Arunachala Gondar, dead by Elas, that is by legal representatives, versus Ponuswamy and others. In this case, as you're seeing on your screen, there was a family in which a couple had two issues. Two issues means they had two children. They gave birth to two children, both were sons. One was Ramaswamy and the other son was Marappa. The actual dispute began when both of them died. When Ramaswamy died, there was no such dispute because he had 5 children. 4 of them were daughters and his only son was named as Gurunath, as you must be seeing on your screen as well. When Marappa died, the only issue was that he had no sons at all, and this was a time before the year 1956. That is when the property used to dwell by survivorship and inheritance, and the principles of succession, that is the Hindu Succession Act, had not yet come into picture at that time. जब मरप्पा की डेथ हुई तो उनके पास सिर्फ एक सोल सर्वाइविंग डॉटर थी, कुपई अम्मल. उस डॉटर ने उस टाइम पे तो वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, लेकिन कुछ टाइम बाद रुक के द डॉटर ऑल्सो डाइड इंटेस्टेट एंड इशूलेस. इंटेस्टेट का मतलब है वो बिना एक विल बनाए उनकी डेथ हो गई, और इशूलेस का मतलब है उनका कोई चाइल्ड या कोई इशू भी नहीं था. 1967 में कुपई अम्मल की भी डेथ हो गई. अब जब कुपई अम्मल की डेथ हुई तब तक हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आ चुकी थी, बट जब उनके फादर मरप्पा की डेथ हुई थी तब तक हिंदू सक्सेशन एक्ट पिक्चर में नहीं आई थी. इसलिए आपको इस केस में 2 एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे. जब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि मरप्पा की प्रॉपर्टी कुपई को जानी चाहिए थी या नहीं एज द सोल सर्वाइविंग डॉटर, तो हम देखेंगे वो प्रिंसिपल्स जो 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट के आने से पहले अप्लाई हुआ करते थे. और जब हम कुपई अमल की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी किसे जानी चाहिए, सर्वाइवरशिप, इनहेरिटेंस या सक्सेशन, कौन से कॉन्सेप्ट लगने चाहिए, वो जानने के लिए हम ये देखेंगे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के आ जाने के बाद कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई होने चाहिए. जब से आप स्क्रीन पे ये फैमिली चार्ट देख रहे हो, ऐसा लग रहा होगा ना कि कितना डिफिकल्ट है इन जजमेंट्स को रिमेंबर करना. क्या मुझे बार बार इनको क्रैम करना पड़ेगा? इफ़ आई हैव अ ड्रीम फॉर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जाम, डू आई नीड टू कीप क्रैमिंग अप दीज फैक्ट्स लाइक दिस? कैन आई गेट सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू कीप दीज जजमेंट्स, कीप दीज प्रिंसिपल्स ऑन माई टिप्स? So yes, you have an opportunity here. Even if you are somebody who needs some help without paying a hefty fee, then this is an initiative for you. Judiciary Gold is an initiative by top rankers, and they are organizing this scholarship test which is called the All India Scholarship and Admission Test. This test will be conducted like any other PCSJ exam, and you will have to attempt all the questions which will be negatively marked as well. And if you clear this exam, you can even be entitled to a full 100% scholarship. Judiciary Gold is such a program where you will also get personalized mentoring sessions from your mentors, which means कि अगर आपको अपने करियर में कोई प्रॉब्लम है, आप जानना चाहते हो कि जुडिशरी के लिए और अच्छे से प्रिपेयर कैसे करना है, मुझे किन स्टेट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, इस तरह की फैसिलिटी भी ये आपको सब्सक्रिप्शन के साथ टोटली फ्री प्रोवाइड करते हैं. If I talk about their courses, then there is one batch that's starting, which is called the Judiciary 1 batch. This is very good for those people who have a target in mind कि इस एक साल में मुझे कैसे भी करके जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स को क्रैक करके ही रहना है. मैंने अपने स्टेट्स भी चुन लिया, मुझे पता है कि मेरा गोल मेरे एकदम सामने है और कोई मुझे इससे हटा नहीं सकता. They provide you coaching for MP, UP, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, all these states, जो कि बहुत मेजर स्टेट्स हैं और बहुत सारा सिलेबस कवर कर देते हैं. और आप सबको एक प्रॉब्लम रहती है कि अगर ऑनलाइन कोचिंग है तो हमें बहुत बार स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, बट जुडिशरी गोल्ड के साथ आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज आई कैन पर्सनली सी फ्रॉम देयर वेबसाइट, फ्रॉम द क्लेम्स दैट दे आर मेकिंग, दैट दे प्रोवाइड कोर्स मटेरियल टू यू इन दी हार्ड बाउंड फॉर्मेट. वो आपके घर पे नोट्स, बुकलेट्स डिलीवर करते हैं और आपको मोर देन 25 बुकलेट्स डिलीवर होती हैं घर पे प्रिपरेशन करने के लिए. उसके साथ साथ वो आपको क्लास नोट्स भी देते हैं और साथ में आपको मैंने मेंटोरिंग सेशंस जैसी चीज़ तो बताई ही.
मुझे इनकी एक बात और बहुत अच्छी लगी कि इनके पास बैच ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अभी भी अगर आप देखो तो आपको सिर्फ जुडिशरी 1 बैच नहीं और भी बैचेस मिलेंगे, जैसे कि जुडिशरी गोल्ड 1 ईयर बैच, और इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो अगर आपको इसके कंटेंट ज़्यादा पसंद आते हैं। सभी कंटेंट्स आपको उनकी वेबसाइट पर बहुत ईजिली मिल जाएंगे। ऑन द टॉप ऑफ इट, दे नॉट ओनली प्रिपेयर यू फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम बट ऑल्सो फॉर द मेन्स एग्जाम। बल्कि मेंस एग्जाम तक ही नहीं, इंटरव्यू के लिए ये आपको पर्सनलाइज सेशंस देते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए भी पहले से ही प्रिपेयर करते हैं। इंटरव्यू ही नहीं बल्कि जब आप एक जज बन जाओगे और आपको एक अच्छी जजमेंट राइटिंग स्किल्स दिखानी होगी, तब भी आप टॉप रैंकर्स के टीचर्स को हमेशा याद करोगे, बिकॉज दे हैव पर्सनलाइज्ड सेशंस फॉर जजमेंट राइटिंग ऑल्सो। जजमेंट राइटिंग सेशंस जो कि आपको जुडिशरी गोल्ड की तरफ से मिलेंगे, इनसे आपको जजमेंट्स को और डेप्थ में पढ़ना, समझना और यहाँ तक कि लिखना भी बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम इसी जजमेंट की बात करें जिस पे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, अरुणाचला गोंडर, यहाँ पे इश्यूज भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए थे और जजेस कई बार इस तरह की प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं जब उन्हें इस तरह के इश्यूज से डील करना पड़ता है। कुप्पयम्मल की डेथ 1967 में हुई, ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट था। अब अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो तो रामासामी के 5 चिल्ड्रन थे। वन ऑफ दीज चिल्ड्रन, दैट इज अ डॉटर थंगम्मल। थंगम्मल ने इस लिटिगेशन को स्टार्ट किया। थंगम्मल का कहना था कि क्योंकि अब कुप्पई की डेथ हो गई है तो जितना भी उनका एस्टेट है जिसको वो अपनी लाइफ के रहते रहते होल्ड कर रही थी, उस एस्टेट में थंगम्मल का 1/5 शेयर है। उनका ये कहना था कि कुप्पई के जाने के बाद क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं हैं, उनके कोई इश्यूज नहीं हैं और क्योंकि उन्होंने कोई विल भी नहीं बनाई है, तो जो एयर्स बचे हैं वो हैं मैं और मेरे 5 भाई बहन, मेरे 5 सिबलिंग्स, जिसमें से मेरी 4 बहनें और मेरा एक भाई गुरुनाथ है। उनका कहना था कुप्पयम्मल की सारी प्रॉपर्टी हम पांचों में इक्वली डिवाइड होनी चाहिए एंड दैट इज व्हाई आई एम एंटाइटल्ड टू 1/5 शेयर इन हर प्रॉपर्टी। दो थंगम्मल स्टार्टेड दिस लिटिगेशन बट शी कुड नॉट सर्वाइव टू सी द एंड ऑफ इट। देयरफॉर हर डॉटर अरुणाचला took over this litigation, that is she started representing Thangammal. But unfortunately, by the time this dispute came to an end, Arunachala Gondar was also dead. And that is why in the title of this case, you see Arunachala Gondar bracket dead by LRs. Arunachala Gondar, that is the appellant here, was again represented by the legal representatives. इससे पहले कि हम इस केस में आगे बढ़ें, कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ फैक्ट्स को शुरू में ही क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको चाहिए होंगे इस केस के लिए एक बेस बनाने के लिए। उसमें से फर्स्ट फैक्ट ये कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आई। 1956 से पहले सक्सेशन से प्रॉपर्टी कभी डिवेल्प नहीं हुआ करती थी। इनफैक्ट इनहेरिटेंस एंड सर्वाइवरशिप रूल्स यूज्ड टू अप्लाई टू द प्रॉपर्टीज बैक देन। सेकेंड प्रिंसिपल, डॉटर्स यूज्ड टू एंजॉय अ लाइफ एस्टेट इन द प्रॉपर्टी बिफोर द ईयर 1956। लाइफ एस्टेट का मतलब है जब तक उनका जीवन, जब तक उनकी ज़िंदगी रहेगी तब तक वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगी, जो प्रॉपर्टी उन्होंने अपने फादर या मदर या पेरेंट्स से एक्वायर की है, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी। वो प्रॉपर्टी सक्सेशन से आगे डिवाइड नहीं होगी। ये रूल था 1956 से पहले तक का। थर्ड प्रिंसिपल, प्रॉपर्टी जो है वो मेजरली, जब हम ऐसे केसेस को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास मेजरली 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है। वन ऑफ देम इज सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी एंड द अदर इज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और द कोपार्सनरी प्रॉपर्टी। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, एज वी ऑल नो, इज दैट प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू ऑल द कोपार्सनर्स टुगेदर। ऐसी फैमिली, ऐसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जहाँ पर अभी तक पार्टीशन नहीं हुआ है, सब लोग एक ही घर में रह रहे हैं, सब लोग के पास एक ही एस्टेट है, वो उस एस्टेट में एक साथ राइट्स होल्ड करते हैं। और सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो जो मैंने अपने पेरेंट्स या अपने एयर्स से नहीं ली है, बल्कि वो मैंने खुद कमाई है, मैंने अपनी सेपरेटली बनाई है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी। अब जब ये आपको ये प्रिंसिपल्स क्लियर हैं, देन वी कैन प्रोसीड अहेड विद द केस। इन दिस केस it was settled that the property that Marappa had was his independent or separate property. It was not joint family property, though there was a dispute about this also in the case, but because the defendants admitted this fact once in their written statements, the Supreme Court concluded that this fact is settled. ये बात तो इस केस में पक्की थी कि मरप्पा की प्रॉपर्टी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी। तो इस केस में हम जब भी बात कर रहे हैं, हम सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इस केस में एक डिस्प्यूट था। एक पार्टी ने ये बोला कि जो मरप्पा की डेथ हुई थी वो 1956 के बाद में हुई थी, और दूसरी पार्टी ने ये बोला कि वो 1956 से पहले हुई थी, क्योंकि अगर उनकी डेथ 1956 से पहले हुई होती तो उनकी प्रॉपर्टी, डिफेंडेंट्स का ये कहना था कि मरप्पा की डेथ क्योंकि 1956 से हिंदू सक्सेशन एक्ट के आने से पहले हुई थी, तो मरप्पा की प्रॉपर्टी, सारी की सारी प्रॉपर्टी गुरुनाथ, जो कि ओनली सन ऑफ द फैमिली था, उसे जानी चाहिए, जो रामासामी का ओनली सन था, क्योंकि मरप्पा का तो कोई बेटा था नहीं। अब अगर आप यहाँ पे इशू देखो तो वो सिर्फ एक इतना सा था कि क्या थंगम्मल को प्रॉपर्टी में 1/5 शेयर मिलना चाहिए, बट इसे डिटरमिन करने के लिए कोर्ट को सब इश्यूज़ बनाने पड़े। अब सब इश्यूज़ बनाने के लिए उनको लॉ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा।
after the year 1956 and before the year 1956. They said that we now have 3 questions before us. First question was related to the nature of property. कि ये property actually self acquired थी या फिर ये joint family property थी. ये question तो बहुत easily शुरू में ही settle हो गया था कि ये प्रॉपर्टी जो थी वो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी ही थी मरप्पा की, तो सूट प्रॉपर्टी का नेचर बिल्कुल सेटल हो गया था. सेकंड क्वेश्चन कि क्या जब एक फादर की डेथ इंटेस्टेट हुई तो सोल डॉटर को राइट था इनहेरिट करने का 1956 से पहले, यानी कि 1949 में जब मरप्पा की डेथ हुई थी. इस क्वेश्चन को डिटरमिन करने के लिए कोर्ट को बहुत सारी कॉमेंट्रीज और पुराने टेक्स्ट को रेफर करना पड़ा. थर्ड क्वेश्चन यानी कि सब इशू जो कोर्ट ने बनाया कि मान लेते हैं कि कुपई को यानी कि सोल डॉटर को राइट भी था उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का, बट उसके बाद ऑर्डर ऑफ सक्सेशन, कुपई की खुद की डेथ के बाद में ऑर्डर ऑफ सक्सेशन क्या होना चाहिए, जिससे कि हम ये डिटरमिन कर सकें कि अब कुपई की क्योंकि डेथ हो चुकी है 1967 में, तो उसकी प्रॉपर्टी को हम किस तरह से बाकी के बचे हुए एयर्स में डिवाइड करें. सेकेंड सब इशू को डिटरमिन करने के लिए कोर्ट को ओरिजिन्स ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, ओरिजिन्स ऑफ हिंदू सक्सेशन लॉज पे जाना पड़ा. उन्होंने देखा कि देखते हैं कि 1956 से पहले जो कमेंट्रीज थी वो क्या प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं. तो उन्हें प्राइमरीली पता चला कि बहुत सारे स्कूल्स ऑफ लॉ एग्जिस्ट करते थे जिनके बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा, जैसे कि दया भागा स्कूल फ्रॉम बंगाल, फिर नंबूदरी स्कूल फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया दैट इज़ फ्रॉम केरला, देन मयूखा स्कूल फ्रॉम बॉम्बे, देन कम्स कोंकण स्कूल फ्रॉम गुजरात, देन कम्स द मिताक्षरा स्कूल. सबसे ज़्यादा हम मिताक्षरा और दया भागा स्कूल्स के बारे में सुनते हैं क्योंकि मिताक्षरा स्कूल को बहुत सारे स्कूल्स फॉलो कर लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर भी सिर्फ मिताक्षरा और दया भागा स्कूल की बात करेंगे. कोर्ट ने बोला बिकॉज दे बिलोंग टू द मिताक्षरा स्कूल, सो लेट्स सी व्हाट द मिताक्षरा कमेंट्री से अबाउट इट. Mittakshara law says that if there is no male issue, that means if there is no male child, then the widow has the right to take over the husband's self-acquired property. And in case there is no widow as well, that is there is no male child, no widow, and only there's a single daughter of the person, of the deceased person, then the entire property, the entire self-acquired property goes to that daughter. That is, even the commentary is used to recognize the sole daughters and the widow's right in the self-acquired property of their husbands or fathers. Then the court came to one of the very important but old Supreme Court judgments. ये इतनी ज़्यादा पुरानी जजमेंट है 1800s के टाइम की कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत कोशिश करने पर भी इसकी कोई कॉपी नहीं मिल पाई क्योंकि शायद अब वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं. जजमेंट का नाम आपको अपनी स्क्रीन पर नीचे मिल जाएगा. आई वुड कॉल इट कटामा वर्सेस श्रीमुथ मुट्टू. अगर इस जजमेंट में हम देखें तो यहाँ भी इट वॉज हेल्ड दैट इफ़ अ हिंदू मेल इज डाइंग इंटेस्टेट देन द प्रॉपर्टी वुड ड्वेल्व बाय इनहेरिटेंस. दैट इज इफ़ अ हिंदू मेल इज डाइंग विदाउट मेकिंग अ विल, तो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से उसकी ओनली डॉटर को जाएगी. अगर उसकी डॉटर है, अगर कोई मेल मेंबर और नहीं है तो उसकी ओनली डॉटर के पास वो प्रॉपर्टी चली जाएगी. अगर उसकी वाइफ है यानी कि विडो है तो विडो को जाएगी, और अगर विडो नहीं है तो डॉटर को चली जाएगी. अब कोर्ट ने बोला प्रिवी काउंसिल के इस डिसीजन को बहुत सारे और डिसीजंस में भी फॉलो किया गया. उन्होंने ये भी बोला कि इनफैक्ट कस्टमरी हिंदू लॉ में भी ये प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड ही है कि अगर प्रॉपर्टी सेल्फ अक्वायर्ड है तो वो पहले विडो को और फिर डॉटर को जाएगी. अगर कोई मेल इशू नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि वो फैमिली के बाकी लोगों में बट जाएगी, जैसे कि गुरुनाथ ने बोला था कि ये प्रॉपर्टी मुझे मिल जानी चाहिए थी. तो इससे इन सबको एनालाइज करके कोर्ट इस कंक्लूजन पे आया कि मरप्पा की डेथ के बाद, इवन इफ़ दैट डेथ अकर्ड इन द ईयर 1949, मरप्पा की डेथ के बाद वो जो प्रॉपर्टी थी उसके रूल्स जो गवर्न होंगे वो इनहेरिटेंस के रूल होंगे, ना कि सर्वाइवरशिप के. यानी कि वो प्रॉपर्टी मरप्पा की फैमिली में एग्जिस्ट करते हुए ओनली सन गुरुनाथ को ना जाके उसकी ओनली सर्वाइविंग डॉटर कुपई को जाएगी. अब ये सेटल हो गया कि वो प्रॉपर्टी कुपई की थी, और गुरुनाथ का ये क्लेम फॉल्सिफाई हो गया इसी टाइम पे कि वो प्रॉपर्टी शुरू में ही मरप्पा की डेथ के टाइम पे ही से ही उसको बिलोंग करती है. अब देखना ये था कि कुपई की तो डेथ 1967 में हो चुकी है, तो क्या थंगम्मल का 1/5 शेयर बनता है इस प्रॉपर्टी में. कोर्ट ने कहा ये देखने के लिए अब हमें सक्सेशन एक्ट पे आना पड़ेगा, HSA पे. उन्होंने बोला कि एक स्कूल तो था जो रिकॉग्नाइज करता था, एक स्कूल ऑफ थॉट, कि जो प्रॉपर्टी होती है फीमेल्स की, फीमेल्स हमेशा इस प्रॉपर्टी को लाइफ एस्टेट की तरह से एक्वायर करती हैं और उनकी डेथ के बाद वो सर्वाइवरशिप से चली जाती है उनकी प्रॉपर्टी उनसे. फीमेल का कभी एब्सोल्यूट राइट नहीं होता प्रॉपर्टी में. बट कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड दैट आफ्टर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, सक्सेशन इज नाउ यूनिफॉर्म फॉर ऑल द पर्सन्स, बी इट अ वुमन और अ मैन. दे सेड कि इस
एक्ट के बाद आ जाने के बाद में वुमेन का एब्सोल्यूट राइट भी प्रॉपर्टी में क्रिस्टलाइज हो गया है। अगर आपको ये जानना है कि वुमेन का राइट प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट किस सेक्शन ने किया, तो आप सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट को जाकर ज़रूर पढ़ो। और अगर आपको ये देखना है कि एक फीमेल की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी, तो आप सेक्शन 15 को जाके पढ़ो, जहाँ पे आपको फीमेल्स के क्लास 1 क्लास 2 एयर्स मिल जाएंगे एंड सो ऑन। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट के आ जाने के बाद कंप्लीट इक्वालिटी है बिटवीन विमेन एंड मेन, दैट इज बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल in terms of property. Because Kuppayammal died in 1967 and because HSA should apply to her, the court concluded that her property would dwell upon by succession. अब जो कुप्पई को प्रॉपर्टी मिली थी वो इनहेरिटेंस से मिली थी। उस टाइम पे सक्सेशन का प्रिंसिपल तो था नहीं, तो हमको सेक्शन 15 में वो प्रिंसिपल ढूंढना था कोर्ट को जो इनहेरिटेंस से मिली हुई प्रॉपर्टी की बात करता हो फीमेल के लिए, और वो प्रोविजन था सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 और उसका भी क्लॉज ए 15(2)(a). 15(2)(a) ये कहता है कि अगर किसी भी फीमेल ने प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से एक्वायर करी है फ्रॉम हर मदर और फादर इन द एब्सेंस ऑफ अ मेल इशू, देन इट शैल ड्वेल अपॉन टू द एयर्स ऑफ द फादर। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी एयर्स ऑफ फादर को जानी थी, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि कुप्पई के डेथ के बाद में ये प्रॉपर्टी उन लोगों को ही जाएगी जो मरप्पा के एयर्स हैं, और मरप्पा के एयर्स थे और कोई नहीं बल्कि उसके भाई के बचे हुए 5 बच्चे, 5 इशूज ऑफ हिज ब्रदर रामास्वामी। अब उन 5 बच्चों में क्योंकि ये प्रॉपर्टी इक्वली जानी चाहिए, क्योंकि अब तो डॉटर्स को भी प्रॉपर्टी इक्वली जाती है और सन्स को भी उतने ही इक्वल प्रोपोर्शन में जाती है, तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया, कंक्लूड किया कि ये प्रॉपर्टी 1/5 शेयर में थंगम्मल को भी मिलेगी, 1/5 शेयर बाकी सिस्टर्स को भी मिलेगा और 1/5 शेयर ही गुरुनाथ को भी मिलेगा। सो फाइनली वो प्रॉपर्टी जो कुप्पई ने मरप्पा की डेथ के बाद अक्वायर करी थी बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, वो सेक्शन 15(2)(a) की वजह से चली गई वापस से अपने सोर्स के पास पे, जो एक्चुअल इंटेंट है सेक्शन 15(2)(a) का। अब इस जजमेंट ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ को हमेशा के लिए सेटल कर दिया है। एक इशू कि 1956 से पहले भी जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती थी वो डॉटर्स को बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस जा सकती रही है बल्कि, और जब भी ये हुआ है वो ठीक हुआ है एज पर द लॉ। सेकेंड इशू कि 1956 के बाद में अगर किसी की डेथ हुई है तो उसकी प्रॉपर्टी कभी भी इनहेरिटेंस या सर्वाइवरशिप से नहीं जाएगी बल्कि सक्सेशन के थ्रू जाएगी। अगर वो फीमेल है तो उस पर सेक्शन 15 के प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे। I would like to specifically thank the verdict today for giving me the opportunity for supplying these amazing journals to me that come to me right on time every month, 2 journals each month, and because of which I am able to read every new judgment that comes up through the Indian Supreme Court or through various respective high courts as well. ये आपको बहुत अच्छी जजमेंट्स की नॉलेज हमेशा ऑन टाइम देते रहते हैं, तो मेरी तरफ से इनको स्पेसिफिक थैंक यू। इफ़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट या अगर आप लॉयर भी हो जिनको ऐसे किसी जर्नल को सब्सक्राइब करना है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड द वर्डिक्ट today. I am dropping their WhatsApp number here. Just tell them that you have come from the reference of vlogish and they will be more than happy to extend a good student discount to you. That's the best thing about them. I hope you liked this judgment, and I hope if you are preparing for the Judicial Services exam, you will give the test that is being conducted by the Judiciary Gold platform, which is an initiative of Top Rankers. Go to the description box, check out the link that I have here, and you have a wonderful opportunity of even availing a total 100% scholarship for preparing for the judiciary exam. What's better than that? I will meet you very soon with a new video on a new concept. Bye for now.